تہلکہ خیز انکشافات کیے گئے ہیں اس انکوائری رپورٹ میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 5 اراکین نے حال ہی میں مکمل کی ہے۔ دل دہلا دینے والے انکشافات ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ڈسکا میں فروری 2021 کو ہونے والے الیکشنز کے دوران ریاست کے خلاف برسر پیکار تھی اور سرکاری اعلیٰ حکام نے ایک سازش کی اور ایک منظم منصوبے کے تحت ڈسکا کے 2021 فروری کے ہونے والے الیکشنز کو چوری کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس میں بڑے پیمانے پر پولیس کے افسران، سول انتظامیہ کے افسران اور محکمہ تعلیم کے افسران بھی شامل تھے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک انکوائری رپورٹ مرتب کی ہے جس میں ان تمام افسران کی انفرادی ذمہ داریاں اور انفرادی جرائم سے پردہ اٹھایا ہے۔ انکوائری رپورٹ کے بارے میں مطیع اللہ جان MJTV آپ کو کچھ ہی دیر میں بریکنگ نیوز دے رہے ہیں اور انکشافات کر رہے ہیں جو کہ انکوائری رپورٹ میں کیے گئے ہیں۔ آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ ڈسکا بعد از وفات رکن قومی اسمبلی سید افتخار الحسن 360 پولنگ سٹیشنوں پر ضمنی انتخابات 19 فروری 2021 کو کروائے گئے۔ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیاں ہوئی۔ پولنگ سے پہلے خلاف ضابطہ تبادلے اور تعیناتیاں پنجاب حکومت عثمان بزدار کی حکومت نے کی۔ یہ سب کچھ وزیر اعظم عمران خان کی صاف چلی شفاف چلی حکومت کے دوران ہوتا رہا اور اس انکوائری رپورٹ میں جو انکشافات کیے گئے ہیں اس سے عمران خان اور ان کی PTI کے چہرے سے صاف اور شفاف انتخابات اور ایمانداری اور آنیسٹی کا جو ایک نقاب چڑھا تھا، اس انکوائری رپورٹ نے اس کو کھینچ کر اتار پھینکا ہے۔ اس انکوائری رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پس منظر یہ ہے اس انکوائری رپورٹ کا کہ الیکشن کمیشن کے احکامات کی عدم تعمیل ہوتی رہی بزدار حکومت میں اور عمران خان کی حکومت میں، اور پولنگ والے دن فائرنگ کے واقعات ہوئے، پولنگ میں تعطل ہوا، نقاب پوش افراد فائرنگ کرتے رہے، دندناتے پھرتے رہے اور بزدار کی حکومت کی صوبائی انتظامیہ پنجاب کی حکومت خاموشی اختیار کرتی رہی، باوجود اس کے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو فوری طور پہ فوری اقدامات کرنے کا احکامات جاری کرتا رہا۔ دن کو ڈسکا کے الیکشن کے دوران 2 افراد کا قتل ہوا۔ رات کے صرف 340 پولنگ سٹیشنوں کا رزلٹ موصول ہوا 360 میں سے۔ ریٹرننگ افسر کو ڈسکا میں یہ رزلٹ صبح 6 بجے موصول ہوا۔ 20 پروزائڈنگ آفیسر لاپتہ ہو گئے، 20 پولنگ سٹیشنوں کے رزلٹ اور نتائج بھی لاپتہ ہو گئے تھے۔ پولیس اور ضلعی انتظامیہ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہنگامی کارروائیوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور الیکشن کمیشن کے تمام تر رابطوں کے باوجود بھی چیف سیکرٹری سے اگلی صبح 3 بجے رابطہ ہو سکا۔ انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب، کمشنر گجرانوالہ، ڈپٹی کمشنر بھی غائب ہو گئے۔ 3 بجے رابطے کے بعد چیف سیکرٹری بھی غائب ہو گئے۔ پنجاب پولیس افسران اور اہلکاروں پر پریزائڈنگ افسروں کو اغوا کرنے کا سنگین الزام لگا۔ 20 لاپتہ پریزائڈنگ افسر صبح 6 بجے کے بعد ریٹرننگ افسر ڈسکا آفس آنا شروع ہو گئے اور ساتھ میں کہا گیا کہ دھند بہت تھی، مگر جب دھند چھٹی تو حقیقت سامنے آ گئی۔ ریٹرننگ افسروں اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر نے 20 پریزائڈنگ افسروں کے بارے میں کہ حاصل شدہ بیلٹ پیپر میں رد و بدل کا شک کا اظہار کیا۔ غیر سرکاری نتیجہ روک لیا گیا۔ ایک امیدوار الیکشن کمیشن پہنچ گیا۔ سماعت کے بعد الیکشن کمیشن نے ڈسکا کا انتخاب کالعدم قرار دے دیا اور پورے حلقے میں دوبارہ الیکشن کا اعلان کر دیا۔ اپیل پر سپریم کورٹ بھی ECP کا فیصلہ برقرار رکھنے پر مجبور ہوئی۔ دوبارہ انتخاب ہوا اور مسلم لیگ نون کی نوشین افتخار جیت گئی۔ اسی انکوائری رپورٹ کے اندر اس سارے معاملے پر 213 صفحات پر ایک باقاعدہ انکوائری کی تفصیلات درج کی گئی ہیں۔ 213 صفحات پر مشتمل اس باقاعدہ انکوائری کا آغاز درج ذیل انکوائری کمیٹی کے اراکین کے ساتھ کیا گیا۔ منظور اختر ملک ایڈیشنل سیکریٹری ایڈمن جو اس انکوائری کمیٹی کے سربراہ مقرر ہوئے، ہارون خان شنواری ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل الیکشن کمیشن آف پاکستان، محمد عبد الودود خان ڈپٹی ڈائریکٹر الیکشن کمیشن آف پاکستان،
साइमा तारिक जंजुआ, डिप्टी डायरेक्टर लॉ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये वो इंक्वायरी थी जो फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी से हट के थी, मुख्तलिफ थी। और ये इंक्वायरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 218 के तहत कराई, जिसमें इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि मुल्क में साफ, शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन कराए जाएं। ये इंक्वायरी इलेक्शन एक्ट 2017 के कानून के तहत भी करवाई गई और ये इंक्वायरी सिविल सर्वेंट एफिशिएंसी डिसिप्लिन रूल 2020 के तहत भी करवाई गई। पंजाब एम्प्लॉइज एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006 का कानून भी इस इंक्वायरी में मददगार साबित हुआ। इंक्वायरी का दौरानिया 1 जून तक 5 जून 2022 बाबूकाम लाहौर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस में तमाम मुल्ज़मान को तलब किया गया। कुल 60 मुल्ज़मान अफसरान को पेशी के नोटिस जारी किए गए। मुल्ज़मान की 3 कैटेगरीज थी। एक ज़िले पुलिस के अफसरान थे जिनकी तादाद 14 थी। दूसरे ज़िले इंतज़ामिया सिविल इंतज़ामिया के अफसरान थे जिनकी तादाद 2 थी। तीसरा महकमा तालीम हुकूमत पंजाब जिनकी तादाद 42 थी। और चौथी कैटेगरी इलेक्शन कमीशन के 2 अफसरान थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यह इंक्वायरी रिपोर्ट बंद लिफाफे में 213 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट एक दिन पहले ही फराहम की गई। ज़राए के मुताबिक इस इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर बहुत ही दिल दहला देने वाले इंकशाफात किए गए हैं। ख़ास तौर पे इंक्वायरी कमेटी के अरकान इस इंक्वायरी के दौरान जिस खौफनाक माहौल का सामना करने पर मजबूर हुए, उसके भी कुछ इशारे इस इंक्वायरी रिपोर्ट में मिलते हैं। 213 सफ़ात पर मुश्तमिल इस इंक्वायरी रिपोर्ट का सरे वर्क यानी प्रीफेस पे इंक्वायरी अफसरान ने ये कहा है, इंक्वायरी कमेटी के सरबराह ने मंजूर साहब ने ये कहा है कि जमहूरियत इख्तिलाफ राय और सियासी लीडरान और उनकी जमातों के बीच अफकार की जंग में एक मुनज़्ज़म मुकाबले का नाम है। हम में से बहुत 1960 और 1917 के अशरे में स्कूलों में सुनते थे कि मुल्क और कौम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं और अगर हमने ज़िम्मेदार रवैये का मुजाहरा न किया तो हम इस मुश्किल वक्त से नहीं गुजर पाएंगे जो हमारे से पहले की सियासी क़यादत का पैदा करता है। हम मुख्तलिफ नारे भी लगाते थे जैसे कि एशिया सुर्ख है वगैरह वगैरह। 1985 में कायद आज़म यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सईद शफकत का हवाला भी दिया गया और इंक्वायरी कमेटी के सरबराह ने कहा कि वो उनके उस्ताद थे। उन्होंने बताया था कि अगर हम अपने घरों से बाहर यूं ही कूड़ा करकट फेंकते रहे तो एक दिन ये कूड़ा पहाड़ बन के हमारे घरों की दीवारों से ऊंचा हो जाएगा और हमारे सहन तक आ जाएगा और अगर हमने ये साफ न किया तो हमारा जीना महाल हो जाएगा। आज 37 साल बाद हम अपनी दीवारों से ऊंचा हुआ वो सियासी कूड़ा डस्का के इलेक्शन की सूरत में देख रहे हैं, जिसको यूं फेंकने में डस्का इलेक्शन में पैसा लगाने वाले, धांधली का मंसूबा बनाने वाले, उनके एजेंट और किराए के लोग और मंसूबे को अमली जामा पहनाने वाले कुव्वतें जो हैं वो मौजूद हैं। और इस इंक्वायरी रिपोर्ट में दिल खून के आंसू रोता है इसकी जो तफसीलात हैं। इस इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर इंक्वायरी कमेटी के अरकान ने अपने उन तजर्बात का तफसील से जिक्र किया है। इंक्वायरी कमेटी के अरकान ने कहा कि डस्का इलेक्शन में रियासती मशीनरी रियासत के खिलाफ जराइम का इर्तिकाब करती रही और ऐसा करने में रियासती वसाइल का इस्तेमाल किया गया जो फंड्स थे जो सरकार के सेंट्रल डिविजिबल पूल से जारी किए गए, यानी जो इलेक्शन का बजट था वो सरकार का था और उस बजट को इस्तेमाल करते हुए सरकारी मशीनरी ने सरकार के खिलाफ ही साजिश की। रियासत की अफरादी कुव्वत का इस्तेमाल रियासत के खिलाफ किया गया, सरकारी हथियारों और आलात का इस्तेमाल किया गया। तो अमली तौर पे डस्का का इलेक्शन रियासत बामुकाबला रियासत का अमली नमूना था। किसी मुअज़्ज़म माशरे में ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता, मगर पाकिस्तान में ये एक मामूल की कार्रवाई समझा गया। डस्का के इलेक्शन जाहिर करते हैं कि रियासत पाकिस्तान अशराफिया के कब्जे में जा नहीं रही बल्कि जा चुकी है और यह कहना गलत ना होगा कि रियासत पाकिस्तान ताकतवर अशराफिया के कब्जे में है। हमारी जमहूरियत पर कब्जा हो चुका है। ये नुमाइंदा जमहूरियत नहीं रही। ताकतवर अशराफिया के एक इशारे पर एक कंप्यूटर वायरस की तरह और एजेंट की मानज अपनी मखसूस कमांड के साथ एजेंट की मानद अपनी मखसूस कमांड के साथ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी जाती हैं और पूरे मुआशरे में ये वायरस फैला दिया जाता है।
इस सूरत हाल की सबसे बड़ी और अफसोसनाक मिसाल डस्का में 19 फरवरी 2021 को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात थे। कम दर्जे और मामूली तनख्वाहों पर काम करने वाले इलेक्शन कमीशन के अमले के बेबस एहलकार पोलिंग से पहले, इस दौरान और उसके बाद मुकम्मल तौर पे अशराफिया की गुलामी में आ चुके थे और मुकम्मल गुलामी में ले लिए गए थे। कमीशन के ये वो एहलकार थे जिनकी कच्ची यानी कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियों और उनके कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमत में तोसी का इन्हिसार उस ताकतवर अशराफिया की आंख के एक इशारे पर था। इसका हवाला यकीनी तौर पे ये कमेटी बुज़दार हुकूमत और शफाफियत के नाम नहाद अलमबरदार इमरान खान की हुकूमत है। ये गुलामी की एक नई किस्म है जो दरियाफ्त हुई है। अशराफिया की गुलामी में लाए गए ये बेबस इलेक्शन कमीशन के एहलकार कम दर्जे और तनख्वाहों वाले कच्चे मुलाजमीन को अशराफिया की तरफ से बाकायदा काम सौंपे गए जो उन्होंने पूरे किए ताकि अशराफिया की खुशनुदी हासिल की जा सके। हम 21वीं सदी में हैं मगर हमारे माशरे में गुलामी बरकरार और हावी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इससे पहले एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बनाई थी और एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जिसकी आज रिपोर्ट जारी की गई है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो पहले बनाई गई थी उसमें सिर्फ बुनियादी हकायक का तयन किया गया था, यानी कि असल में हुआ क्या है, मगर जो आज रिपोर्ट जारी की गई है उसमें हर सरकारी मुलाजिम की इनफरादी जिम्मेदारी और इनफरादी जराइम से पर्दाचाक किया गया है। जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी, उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का जो कि सिर्फ हकायक जानने के लिए थी, उसका खुलासा वो भी आपको बताते चलते हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी और इंक्वायरी कमेटी की कार्रवाइयों के दौरान इस कमेटी के ये अल्फाज हैं, उसमें कहा जा रहा है, कमेटी के अरकान ये बता रहे हैं कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी और इंक्वायरी कमेटी की कार्रवाइयों के दौरान तहकीकात को सबोसार यानी नुकसान पहुँचाने के लिए मुनज़्ज़म कोशिशें की गई। प्रिजाइडिंग अफसरान, सिक्योरिटी एहलकारों और कमेटी पर असरअंदाज होने की अफसरान और ड्राइवरों पर दबाव डाला गया। उन्हें धमकियां दी गई कि वो खामोश रहें वरना संगीन नताइज भुगतने के लिए तैयार रहें। डस्का इलेक्शन के मरकजी और बड़े किरदारों ने अपने खिलाफ इंक्वायरी रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से भी रजू किया और फिर लाहौर हाई कोर्ट से इन अफसरान को रिलीफ भी मिला और उनसे लाहौर हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी लिए गए और अभी तक उन स्टे ऑर्डर्स की वजह से ये इंक्वायरी हतमी तौर पे अपनी सिफारिशात मुरतब नहीं कर सकी। मगर इसके बावजूद भी जो इंकशाफात हैं वो इस इंक्वायरी के अंदर जिस तरीके से दर्ज किए गए हैं वो अब रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है। मुख्तलिफ इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्तलिफ तरीक़ों और गैर महसूस अंदाज से इंक्वायरी कमेटी को पैगामात पहुँचाए गए और ख़बरदार भी किया जाता रहा। पैसा लगाने वालों और मनसूबा साजों ने अपनी लॉबिंग की ताकत भी आजमाई होगी। ऐसे हालात व वाक़यात की रोशनी में यूँ लगता है कि इलेक्शन कमीशन को अपने सहन में शोहदा का एक मज़ार बनाना पड़ेगा जहाँ मेहमानान गिरामी फूलों की चादर चढ़ाने आया करेंगे।